So today we will be starting with a new chapter, that is limited liability partnership. So every one of you must have heard about partnership business. And when you have studied partnership business in the previous years, maybe in your 11th, 12th, FY, SY also, we had partnership accounts. So one thing what we had always learned was the liability of partners is unlimited. What do you mean by unlimited liability? That if the business assets are not sufficient to discharge the debts of the business, what will the partner do? He'll have to get the personal assets, his own personal assets, to satisfy, to clear, to discharge his business debts, to pay the creditor. तो क्यों, अगर क्रेडिटर को पे करने के लिए अगर बिजनेस का असेट सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करता है पार्टनर? अपने पर्सनल असेट्स भी लेके आता है. व्हाई ही इज डूइंग दिस? बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स वर unlimited. But when you talk about this partnership, from the name itself, we come to know that the partnership liability is limited. So in this particular type of business, it is a partnership business, though the liability of the partners in this kind of business is limited. So this is the very special aspect, very important aspect in limited liability business, that the liability of the partners will be limited. And this kind of business is governed by what? Like, see, you must have heard about partnership deed. What is a partnership deed? पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने सुना है? तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? वो एग्रीमेंट होता है जो कि किसके बीच में रहता है? पार्टनर्स के बीच में होता है. When they start the business, they enter into a partnership deed, which is an agreement between the partners for their partnership ratio, how much profits they will, at what ratio they will share the profits, everything is mentioned. Same way in the LLP business, that is limited liability partnership business, there is a LLP agreement. What is that? This business is governed by the LLP agreement, which is an agreement which is entered between the partners of a LLP business. And suppose if LLP agreement is not created, then what we will do? If LLP agreement is not created among the partners, then they will adopt Schedule 1 of the LLP Act 2008. Schedule 1 of the LLP Act 2008 will be implemented in the absence of LLP agreement. 1 minute. So this was the first slide. Now let us come to the next slide, that is the advantages of LLP business. Now, why to select LLP business? Why the partner? Why anyone will think of coming into entering into a limited liability partnership? कुछ advantages होंगे जो उनको attract करेगा towards forming a LLP business, right? So what is the advantages? This is a very well-known and accepted form of business. It contains low cost. It is easy to establish. No minimum
capital contribution, no restrictions as to maximum number of partners. हमारा पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन है, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग बिजनेसेस में मैक्सिमम पार्टनरशिप का रिस्ट्रिक्शन है, बट एलएलपी बिजनेस में मिनिमम है 2, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है. It is unlimited. There is no restriction as to maximum number of partners. LLP and its partners are distinct from each other. तो ये जो LLP बिजनेस है ना, ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप का और कंपनी का. मीन्स पार्टनर्स तो है ये, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड, पार्टनर्स का तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. ये हमने 11th स्टैंडर्ड से स्टडी किया. अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप फॉर्म करोगे तो आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बट ये बिजनेस का लाइबिलिटी क्या है, लिमिट. और लिमिटेड लाइबिलिटी किसका होता है, कंपनी का. कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, दैट इज टिल द एक्सटेंट ऑफ द शेयर how much you have purchased. आपका लाइबिलिटी कितना होता है, टिल द अमाउंट ऑफ अनपेड एलिमेंट इन द शेयर. मीन शेयर का जो अनपेड अमाउंट होता है उतना ही आपका लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी. तो लिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये जो एलएलपी बिजनेस है, यहाँ पे भी एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों का, क्योंकि लिमिटेड पार्टनरशिप है, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है. एलएलपी अलग है और इन पार्टनर्स भी अलग है. बट पार्टनरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस एक होता है, लाइक सोल ट्रेडर एंड सोल ट्रेडिंग बिजनेस. दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, दोनों सेम होते. इसके लिए अगर उनका बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं होता तो हम क्या करते, पर्सनल एसेट्स भी लेके आ जाते. तो यहाँ पे partners are not liable to the act of other partners. मतलब what is there, that the partners are partners are an agent to the company. Company, that is LLP business, अगर principal है तो partner जो है वो agent relationship है, agent and principal relationship between the LLP business and the partner, but towards each other, that towards the other partners there is no, मतलब क्या बोला है, partners are not liable for the act of other partners. दूसरे partners के कुछ भी fraudulent act या कोई भी acts के लिए दूसरे पार्टनर्स जिम्मेदार नहीं रहेंगे. पार्टनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स. जैसे कंपनी में भी शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर ने कुछ फ्रॉड किया तो दूसरे शेयर होल्डर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, राइट. So this in LLP also, partners are not liable for the act of अदर पार्टनर्स. दूसरे पार्टनर्स के कोई भी एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नो एक्सपोजर ऑफ पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर्स एक्सेप्ट फ्रॉड. मतलब अगर फ्रॉड हुआ तो उसका पर्सनल असेट्स को यूज करेंगे, लेकिन नहीं तो इट इज, ही विल नॉट गेट हिज पर्सनल assets for the business, like partnership business. Less government intervention, government का interference, intervention lesser है as compared to other business. Less requirement as to maintenance of statutory records. Statutory record जो compulsorily as per law कुछ books maintain जो करते हैं वो भी less है as compared to other business. Less requirement as to maintenance of statutory records. Easy to dissolve or wind up. Business wind करना, बंद करना, dissolve करना भी easy है. And audit requirements that are required. Audit का requirement is
required for audit करना, verification करना accounts का, that is required. That is required for every business ना. That are, देखो audit करेंगे तो हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाएंगे. That is also advantage. When audit is done, then there is a transparency in the business. क्या हो रहा है वो सबका वेरिफिकेशन होगा ना. Then what is the disadvantages? Under some cases, liability may extend to personal assets of partners, like for example, fraud. LLP cannot raise money from public. जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, वो लोग पब्लिक से पैसा बाय वे ऑफ शेयर्स रेज करते हैं, बाय वे ऑफ डिबेंचर्स they raise money from the public, but that is not possible from LLP business. That is one of the disadvantages of the LLP business. Now partners, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया LLP बिजनेस में क्या कौन होते हैं? ओनर्स. Owners are the partners because it is limited liability partnership. So only the important part here is liability of the partners is limited. From the name itself we can make out. तो यहाँ पे who are the owners? ये business में who will be the owners? Because this is a partnership business. Owners are the partners. So partners are who? Partners are the owners of the business. So partners are persons who can be natural or artificial, who are subscribed their name to the incorporation document. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में इनका नाम मेंशन है, ये वो लोग हैं, दे आर द पार्टनर्स. नाउ हु कैन बी द पार्टनर्स? कौन पार्टनर्स हो सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे नेचुरल भी बोला है, आर्टिफिशियल भी बोला है. सो दे बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो एंटर इनटू LLP बिजनेस. Individual person, natural person can also enter into LLP business. So there, who can be a partner? There should be at least 2 persons, natural or artificial, required to form a LLP. मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट मिनिमम हमें कितने पार्टनर चाहिए? 2 मिनिमम पार्टनर. बिकॉज देखो अगर सिंगल ओनर है तो उसको पार्टनर नहीं बोल सकते. हमने ये पार्टनरशिप बिजनेस में भी देखा है, पार्टनर मीन्स मिनिमम 2 persons, नेचुरल और आर्टिफिशियल इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे भी हमारे LLP बिजनेस में भी कितने मिनिमम पार्टनर चाहिए? 2. और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है. इन केस एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ पार्टनर, अगर सपोज कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो उनको कोई नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा. उनको क्या करना पड़ेगा? टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, जो भी करना है उसके लिए नॉमिनी, एक रिप्रेजेंटेटिव को रखना पड़ेगा. In case any body corporate is a partner, then it will be required to nominate any person. तो यहाँ पे पर्सन जो है वो नेचुरली होना चाहिए. अगर कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी LLP का पार्टनर बना है, तो उनको एज अ नॉमिनी एक नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ द LLP. Next, role of the partner. What will be the role of the partner? Section 26 defines the role of the partner and states that every partner of a limited liability partnership is for the purpose of the business of the limited liability partnership agent. क्या बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पार्टनर, ये मैंने पहले भी आपको बताया, पार्टनर जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, उसका रोल क्या होता है? उसका रोल एजेंट का होता है. और बिजनेस इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. LLP बिजनेस अगर प्रिंसिपल है तो पार्टनर्स आर देयर एजेंट, पार्टनर्स आर देयर
एजेंट, एंड जो दूसरे पार्टनर्स होते उनसे कोई रिलेशन नहीं, जो दो पार्टनर्स का अमंग ईच अदर कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशनशिप बिजनेस से है। तो इसीलिए अगर दूसरे पार्टनर ने कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्ट भी कमिट किया तो दूसरा पार्टनर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ बिजनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स? पार्टनर्स का राइट्स क्या है? पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। क्या राइट है? दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी दो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन, बट इफ स्पेसिफिकली इट इज इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में दिया है कि उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए तो मिलेगी, नहीं तो एलएलपी में ऐसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता। पर अगर शेड्यूल 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें तो रेम्यूनरेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर एग्रीमेंट में हम रेम्यूनरेशन डालते हैं, देन वो क्लॉज डालेंगे तो देन दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर द रेम्यूनरेशन ऑल्सो। फिर इनका ड्यूटीज क्या है? Partners are required to comply with all the provisions of LLP Act and LLP agreement. सारा जो भी provisions है वो उनको follow करना है, and not to indulge in any fraudulent practices, fraudulent transactions. तो ये जो partners है इनको कोई भी fraudulent transactions में enter नहीं करना चाहिए with the creditors or the outsiders. Then liability क्या है? Liability of partners, ये तो नेम से ही पता चलता है, liability of the partners are limited. They are not entitled to get their personal assets. उनको उनका पर्सनल एसेट, इन सम केसेस अगर फ्रॉड कुछ कमिट करेंगे तो अलग बात है, नहीं तो फिर उनको उनका पर्सनल एसेट्स को लेके आने का जरूरत नहीं है। एडमिशन एंड सेसेशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कैसे पार्टनर को एडमिट करना है, कैसे पार्टनर को रिमूव करना है, तो उसके लिए अ न्यू पार्टनर कैन जॉइन द LLP or an existing partner can choose to be a partner, can end his partnership of the LLP subject to the compliance of the terms and conditions of the LLP agreement. LLP agreement के हिसाब से किसी को एडमिट भी कर सकते हैं एंड किसी का पार्टनर का मेंबरशिप को एंड भी कर सकते हैं। Now a very important term, that is a designated partners. So LLP में एक बहुत कॉमन, LLP में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये, जिसको बोलते हैं designated partners. Now who are the designated partner in the company? जैसे डायरेक्टर्स होते हैं वैसे ही LLP में designated partners होते हैं। जैसे समझ में आता है कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स का काम क्या है, सब मीटिंग्स में सबने उनको प्रिसाइड करना है, सब बाकी पार्टनर कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स के बिहाफ में उनको एक्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पे बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में कौन एक्ट करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो इनको या सिमिलर टू हूम डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए बिजनेस LLP बिजनेस में। कितने? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीन्स any partner designated as such pursuant to section 7 of the Limited Liability Partnership Act 2008। जैसे पार्टनरशिप, अपना पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका कौन सा एक्ट है पार्टनर्स के लिए? 1932। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा होता है? 1932।
कंपनी इसका एक्ट कौन सा होता है? 2013 में नया सबसे लेटेस्ट एक्ट आया है। तो सेम वे ये एलएलपी बिजनेस का जो एक्ट है वो कभी है 2008। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एलएलपी एक्ट कब फॉर्म हुआ है ऐसे ईयर आ सकता है। सो यू शुड नो इट वाज इन द ईयर 2008. So LLP business is governed by the Limited Liability Partnership Act 2008 and designated partners के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए कौन सा सेक्शन में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में दिया हुआ है? सेक्शन 7 of the Limited Liability Partnership Act 2008. Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners. ये मैंने आपको बताया कितने designated partners होना चाहिए? Minimum at least 2 who are individuals and at least one of them shall be the resident of India. तो क्या होना चाहिए? कितने उसमें से एटलीस्ट एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, सॉरी नहीं, designated partner who are individuals and at least one of them shall be the resident of India. उसको resident होना चाहिए इंडिया. In case no partner is designated as such or if at any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be a designated partner of the LLP. अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो हर एक पार्टनर को हम डीम करेंगे, मान के चलेंगे कि हर एक पार्टनर क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर है. सो रोल क्या है इसका? डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल है द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रोल. The role of designated partner in case of LLP is similar to that of a director in case of a company. ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको. उसका रोल कैसा है? जैसे कंपनी में डायरेक्टर का रोल होता है वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल है. द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज as provided under section 8 are directly responsible for the compliances of all provisions provided under LLP Act 2008 and the provisions specified in the LLP agreement. So here after this rights, इसका rights क्या है? Designated partner shall be responsible. So उसका rights क्या है? सेम लाइक ऑल पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी राइट कैसा है? बाकी पार्टनर्स का जैसा राइट है वैसा ही इसका भी राइट है. लाइक अदर पार्टनर्स दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन. इनको एक्स्ट्रा कोई रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एग्रीमेंट में तो रेम्यूनरेशन मिलेगा, नहीं तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन. देन इसके बाद इनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? दे आर रेस्पॉन्सिबल. डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स, मैटर्स एंड थिंग्स एज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी in respect of compliance of the provisions of this act. Liable for to all penalties imposed on the LLP for any partnership or any contravention to those provisions. अगर कोई provisions को follow नहीं करते हैं तो कोई penalties लगेगा तो उसके लिए designated जो पार्टनर है वो भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा. देन उसका ड्यूटी क्या है? अगर कोई चेंजेस होगा एलएलपी, नोटिफाई एनी चेंजेस इन द एलएलपीज टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अगर कोई चेंजेस होगा एलएलपी में तो वो
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई पार्टनर अगर सपोज किसी को एडमिट किया तो बताना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को अगर कोई रिमूव हो गया तो वो इन्फॉर्म करना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया तो वो इन्फॉर्म करना इसका ड्यूटी है। मीन्स ऑल द ड्यूटीज नॉर्मली जो डायरेक्टर सबका रहता है ये यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का ड्यूटी रहेगा। टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस, देखो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है उसको सामने रजिस्ट्रार के सामने बताना है तो एवरीथिंग दिस पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी डूइंग। एंड वैकेंसी, any vacancy arising in the office of a designated partner shall be filled within 30 days and the change shall be intimated to the registrar of companies। कितने दिन में फिल करना चाहिए? 30 डेज में, और इन्फॉर्म भी करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। What we will do remaining, we will let us do in the next lecture. So I will end the lecture here. Thank you very much, everyone. Please, everyone, let us do only one slide is remaining. So let us complete this also. That is here the last point. What we will discuss today is conversion of partnership company into LLP. अगर पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले पार्टनर डिसाइड करना है, designated partners decide करना है, obtaining the designated partner identification number and digital signature certificate। तो इनका ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट होने के बाद वो नंबर ऑब्टेन करना, फिर डिजिटल सिग्नेचर, बिकॉज एलएलपी का सब काम है ना ऑनलाइन होता, तो इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास तो एटलीस्ट डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, बिकॉज सारा साइन है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, तो सिग्नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर। फिर चेकिंग नेम अवेलेबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नेम क्या हम रखेंगे, वो नेम किसी और ने तो नहीं ले लिया है, तो वो सबके हिसाब से चेकिंग क्या नेम हम लोग एलएलपी को रखेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। देन ड्राफ्टिंग द एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो ड्राफ्ट करना, वो प्रिपेयर करना विल बी द नेक्स्ट स्टेप। देन फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कन्वर्जन एप्लीकेशन, बिकॉज क्या हो रहा है, पार्टनरशिप इज कन्वर्टिंग इनटू एलएलपी, तो कन्वर्जन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद इन्फॉर्म करना टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स about the conversion of the partnership into the LLP is the final step. So these are all the steps in conversion of partnership or company into private limited company into LLP. With this, finally, I will end the lecture.